If you are a teenager, give me 10 minutes of your life. Hello, my chitpati divas. Welcome to my channel. I'm not here to give you any kind of motivation today. I'm here to give you a reality check, some advices that I want to give my younger self. But unfortunately, I don't have a time machine or anything. So I don't want you to repeat the same mistakes I did. So comment down your age, and in this video I will give you 8 advices. And just please listen to the end. First, ignore what everyone else of your age is doing, because see, everyone else has different priorities, interest and goals. So कोई भी चीज़ फोमो में आके करना is the biggest mistake you do. Like, you see everyone of your age having an Instagram account, YouTube, or etc whatever social media it is. एंड नाउ you're in FOMO. आपको लग रहा है कि मुझे भी इंस्टाग्राम आईडी बनाना चाहिए, मुझे भी अकाउंट बनाना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए, वो करना चाहिए, मुझे भी रील्स बनाना चाहिए जैसे मेरे आसपास के सभी लोग कर रहे हैं. बट सी, if you are genuinely not interested in that thing, please don't do that. If that thing doesn't make you feel good, don't do that. जिस जो चीज़ करके आपको अच्छा लगे आप वही कीजिए. एंड आई नो आपके आसपास के लोग बहुत सारी चीज़ों में, कोई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होगा, कोई किसी किसी की जॉब लग गई होगी, एंड इवन मोर. बट एंड दैट डजंट मीन अगर आप वो चीज़ कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन सब से पीछे हो या आप ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं रहे हो. अगर आप कोई उनसे अलग चीज़ कर रहे हो या हट के कुछ कर रहे हो तो दैट्स अ गुड थिंग, यू आर नॉट बिहाइंड. और अगर रिमेंबर अगर आप सबसे हट के कुछ करोगे तो उसमें फॉर श्योर डिफिकल्टीज आएंगी. दैट डजंट मीन यू आर फेल्ड. And I know some people of your age are in relationship or something like that. So, and it seems very cool, and people nowadays romanticizing that. And now you're just being in the pressure. अब आपको लग रहा है कि आई थिंक मुझे भी ये करना चाहिए, जब आप उसमें नहीं, उस चीज़ को आपको नहीं करना है अंदर से. बट बिकॉज ऑफ एवरी वन यू आर थिंकिंग कि नो, यू आर जस्ट अनकूल इफ़ यू डोंट डू दैट. No, you are not uncool. Please remember. And second point is, please learn a valuable skill which helps you to make money. Because people say we don't have time. I know these days teenagers really don't have time to do things other than studies, but I'm sure that everyone has 20 minutes. सो उसमें आप उस चीज़ को आप डोम स्क्रॉलिंग या किसी भी शिटी चीज़ करने से अच्छा है कि उसमें 20 मिनट्स एक अच्छी स्किल में इन्वेस्ट करें जो आपको फ्यूचर में हेल्प करेगी पैसा कमाने में. ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंटेंट क्रिएशन, एडिटिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं. सो प्लीज़ इन्वेस्ट योर टाइम इन दैट थिंग instead of doing some shitty things that will help you throughout your life. And this is the correct time. It's not too late, it's not too early. This is the perfect time to learn anything that will help you in future. And the third point is, please stop worrying what other thinks about you. Oh my god, they call me cringe, they call me that, this. So so did that did that thing affect your life? If they are calling you whatever, did that affect you, your life? Why? Their opinion is just an opinion. Please understand this. You like, see, if you are doing anything, like if you're doing content creation, if you're dressing sense or anything, देखना कि कौन पर्सन आपको जज कर रहा है. Someone who didn't know how to edit videos and judging your editing, and you care like, oh my god, he or she saying that my video is not really that good. See, if you're taking someone's line personally, first see कि उनको कितना एक्सपीरियंस इस चीज़ का, और उनकी इंटेंशन क्या है आपके लिए, वो किस इंटेंशन से आपको बोल रहे. दे आर जस्ट जजिंग यू और गिविंग यू एन एडवाइस. प्लीज़ थिंक अबाउट दैट. एंड
Please don't worry about everyone else, because literally no one is coming for you to help you. This is your life. आपको ही सब कुछ करना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा आखिरी में आपको बचाने के लिए या कुछ भी करने के लिए. सो this is your life, do whatever you want to do, don't think about others. And the fourth point is, be so busy improving yourself that you don't have time to criticize others. See, when I'm saying that don't care what everyone else is saying, what everyone who is judging you, what if you're one of them judging other? If you judge others, you will care too what other people think about me. So be so busy, like आपके पास टाइम ही ना रहे किसी और के बारे में सोचने के लिए कि ओ माय गॉड उसने उस दिन क्या पहना था, वो क्या कर रही है अपनी लाइफ में. अगर आप उनको एक जेन्युइन एडवाइस देना चाहते हो तो आप वो दे सकते हो, लेकिन आपका भी कोई हक नहीं है कि आप किसी को भी जज करो अगर आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है. तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपके साथ भी वही होगा, और उस चीज़ को आप डेफिनेटली पर्सनली लोगे, क्योंकि आप भी वो सेम चीज़ें कर रहे हो अपनी लाइफ में. सो प्लीज़ अपने आप को ऐसा बनाओ कि आपको टाइम ही ना रहे किसी और के बारे में सोचने के लिए. जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, improve yourself. Fifth point, and I think this is one of the most important points, choose your friend wisely. Please, because if you're surrounded around negative people, you will become one of them too. So please, आप देखिए कि आपके अराउंड कैसे लोग हैं. अगर आपके आसपास के लोग आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं और आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं फॉर नो रीज़न एट ऑल, प्लीज़ कट देम ऑफ. आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, बट प्लीज़. लाइक अब आप देखिए आपके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, वो खुद पे फोकस कर रहे हैं कि दूसरों को जज करने में लगे हुए हैं. उनका बॉडी, वो रिच है पुअर हैं, और उनका स्किन कलर क्या है, वो कैसे दिखते हैं, उनके लुक्स जज कर रहे हैं, उनका ड्रेसिंग सेंस जज कर रहे हैं, एनीथिंग. सो मतलब द होल टाइम द ओनली थिंग दे आर डूइंग इज बिचिंग, गॉसिपिंग अबाउट अदर्स. प्लीज़ डोंट सिट विद दैम. अगर आप उनके साथ रहेंगे तो एट द एंड आप भी वही करते रहेंगे. सो प्लीज़ ऐसे लोगों के साथ मत रहिए. आई हाईली सजेस्ट यू, प्लीज़ ऐसे लोग के साथ रहिए जो खुद की लाइफ पे फोकस करते हैं और कभी दूसरों को जज नहीं करते अबाउट समथिंग दैट दे कांट चेंज. उन चीज़ों पे जो सामने वाला व्यक्ति अपने बारे में नहीं बदल सकता है. दैट्स नॉट द राइट थिंग. एंड आई ट्राइड टू मेक अ सेपरेट वीडियो इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, बिकॉज अगर इसी वीडियो में सब कुछ बताऊंगी तो ये वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको अलग वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी. एंड सिक्स्थ पॉइंट इज़, डू वॉट यू लव एंड स्टॉप कंप्लेनिंग. देखो कुछ लोगों को बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं एंड दे गिव एक्सक्यूजेस लाइक, सी माई पेरेंट्स डोंट अलाउ मी, आई डोंट हैव दीज थिंग्स दोज थिंग्स. Oh, your parents don't allow you? Does your parents allow you to watch Netflix movies or talk to that boy or girl? Allow you to doom scrolling? What allow? If you really want to do, then do it. I don't have these things, those things. See, these all are excuses. I know this is sound really rude, but आपको किसी भी चीज़ को करने के लिए कभी आपको हर कुछ कभी नहीं मिलेगा. आपको मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा बहुत. अगर आपको रियली आप अंदर से चाहते हैं कि हाँ मैं ये चीज़ करूँ, कुछ करूँ, तो इट डजेंट मैटर आपके पास क्या है क्या नहीं है. अगर आपको सच में करना है तो आप करोगे. एंड सेवेंथ पॉइंट इज़, बी ग्रेटफुल टुवर्ड्स योर पेरेंट्स. आई नो सम पीपल विल से कि मेरे पेरेंट्स ऐसे, मतलब अभी आपको लगता है कि आपके बिगेस्ट सबसे बड़े दुश्मन आपके पेरेंट्स हैं, बट ऐसा सीरियसली नहीं है. एंड आई नो कभी कभी पेरेंट्स का माइंडसेट और अपना माइंडसेट बहुत ही अलग हो जाता है. एंड इट्स नॉर्मल. दे आर नॉट समवन, दे आर जस्ट केयर अबाउट यू. उनको आपकी चिंता रहती है, इसलिए वो आपको ऐसा कुछ करने से मना करते हैं कुछ भी. दे आर नॉट योर एनिमी, दे आर नॉट. अगर आप बीमार होते हैं कल को या कुछ भी आपको होता है, तो वही लोग सबसे पहले आपके लिए रहते हैं हमेशा. आप नो मैटर, अगर आप एक फेलियर हो, आप सक्सेसफुल हो, आप कुछ भी हो, वो आपके साथ हमेशा रहेंगे.
कभी कभी फ्रेंड्स या कोई भी अपन को लगता है कि नो नो माई पेरेंट्स आर नॉट रियली सपोर्टिव, और नो दे आर एंड they are the only one who love you at every condition. नो मैटर आप कैसे दिखते हैं, आपकी कंडीशन क्या है, वो हमेशा आपके लिए होंगे वहाँ पे प्रेजेंट जब आपको किसी की नीड होगी. सो जस्ट बी ग्रेटफुल कि आपके पेरेंट्स हैं आपके पास, बिकॉज सम पीपल डोंट हैव पेरेंट्स. एंड या, सो जस्ट बी ग्रेटफुल टू दैम यार. And the last and the most important point is trust to God. Trust God. बिकॉज एंड गेट क्लोजर टू हिम. कभी कभी आपको लगता है ना अब मेरी लाइफ में कोई नहीं है, आप बहुत अकेला फील करते हैं. प्लीज़ किसी अपने घर के आसपास के मंदिर जाके वहाँ पे 10 मिनट बैठिए और भगवान से ऐसे बात करिए कि जैसे वो आपके दोस्त हों. उनको सब कुछ बताइए और उनसे हमेशा मांगना बंद करिए कि भगवान मुझे ये दीजिए, प्लीज़ गॉड गिव मी दैट, गिव मी दिस, वॉट एवर. नो, just say that, God, please guide me. I'm doing my best. If I'm making any kind of mistake, please help me, guide me. Just do this one thing and trust God more than you trust anyone. Because sometimes you trust some city people, but that's not worth it. If you trust God, that will be worth it. सो जब आप बहुत स्टक फील करें, आपकी लाइफ में कुछ समझ ना आए, बस जाके भगवान के पास बैठ जाइए, उनसे बातें करिए. दैट विल रियली हेल्प एंड आई एम एक्सपीरियंस, दैट्स वाई आई एम सेइंग दिस thing. So that's it for this video. Thanks for watching. If you stayed till the end, thank you so much. And if you like such kind of videos, please subscribe to my channel, and because I upload more videos like this. And bye.